کمرے میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر بارش کے ہلکے قطرے شیشے سے ٹکرا کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے زینی کے دل میں اٹھنے والے خدشات اس کے وجود کو بے چین کر رہے تھے۔ 22 برس کی زینی، جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، حوصلے جنابت کے بعد بوجھل قدموں سے باہر نکلی۔ اس کی گیلے بال اس کی شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے ٹپکتی بوندیں اس کی سفید ریشمی لباس کو بھگو رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ خود کو ایک شطرنج کا مہرہ محسوس کر رہی تھی۔ اسد، اس کا پہلا شوہر جس نے غصے اور انا کی بھینٹ چڑھ کر اسے طلاق دی تھی، اب حلالہ کی اس گناؤنی رسم کے ذریعے اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ احد، جس سے اس کی شادی محض ایک معاہدہ تھی، ایک ایسا شخص جسے حسن نے ایک معمولی پھل فروش سمجھ کر کرائے پر لیا تھا تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ زینی تولیے سے اپنے بال سکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ایک مضبوط گرفت نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا چیختی، احد نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا تو احد کے مضبوط سینے سے جا لگی جہاں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ احد کا لمس اس کے لیے بالکل نیا تھا، وہ احد جسے وہ اب تک ایک عام سا خاموش طبع انسان سمجھتی تھی، اس وقت اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ اس کی گرفت میں وہ ایک نازک سے شیشے کی گڑیا لگ رہی تھی جو ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ سکتی تھی۔ حلالہ ہو چکا ہے، اب آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، زینی نے لرزتی آواز میں کہا، حالانکہ اس کا اپنا وجود احد کی قربت سے سہم رہا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں احد کے سینے پر جما دی تاکہ خود کو اس سے دور کر سکے، لیکن وہ گرفت ایسی نہ تھی جو آسانی سے ختم ہو جاتی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ احد کی آواز گہری اور پرسرار تھی، جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہے ہو۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ۔ زینی نے نظریں جھکا لی۔ اسد تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے، آپ کو مجھے طلاق دینی ہے تاکہ میں ان کے پاس واپس جا سکوں۔ یہ ایک معاہدہ تھا احد صاحب، اور اب آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ زینی کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ احد نے اچانک پنترا بدلا۔ اس نے ایک ہی جنبش میں زینی کو بستر پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو زینی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک شکاری کی آنکھیں تھی، کسی بے بس پھل فروش کی نہیں۔ تم میرے نکاح میں ہو، سمجھی؟ احد کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ زینی کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ مرد کا بچہ ہوں، اسد کے حوالے نہیں کروں گا تمہیں دوبارہ۔ زینی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ احد جسے اسد نے محض چند روپے کے عوض اپنی انا کے تسکین کے لیے چنا تھا، اس وقت وہ کسی اور ہی روپ میں سامنے تھا۔ اس کی بہادری اور یہ بے باک انداز زینی کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ آپ پاگل ہو گئے؟ زینی نے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات سے کہا، وہ اسد ہے، وہ ایک طاقتور انسان ہے، وہ آپ کی زندگی برباد کر دے گا، اور آپ نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک ہے۔ زینی کی فکر میں سچائی تھی، لیکن وہ احد کی مسکراہٹ دیکھ کر ٹھڑک گئی، وہ مسکراہٹ جو فاتحانہ بھی تھی اور تحقیر آمیز بھی۔ زینی لاشعوری طور پر اس کی اس مردانگی سے متاثر ہو رہی تھی جو اس نے اسد کے ساتھ گزارے ہوئے وقت میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسد کی طاقت دولت اور خوف پر مبنی تھی، جبکہ احد کی طاقت اس کی اپنی شخصیت میں چھپی تھی۔ وہ بگڑا نواب مجھے پھل فروش سمجھتا ہے؟ احد نے زینی کے چہرے کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں زینی کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کسی کو بھی خرید سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ احد نے ایک لمحے کا توقف کیا، جیسے وہ اپنی اصلیت پر سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر رہا ہو۔ زینی، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں ایک خفیہ ایجنٹ ہوں، اور اسد جیسے مہرے میرے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ اس نے تمہیں ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو زندہ گاڑ دوں گا زمین میں۔ زینی کا دل زور سے دھڑکا۔ خفیہ ایجنٹ؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس نے ہاتھ کے چہرے کے خدوخال کا غور سے جائزہ لیا۔ وہ مضبوط چپڑا، وہ تیز نگاہیں اور خود اعتمادی جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ زندہ گاڑ دینے کا ویسے بھی بہت تجربہ ہے مجھے۔ احد نے یہ جملہ اتنی سرد مہری سے کہا کہ زینی کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ ایک حقیقت کا بیان تھا۔ لیکن آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ زینی نے دبی آواز میں پوچھا۔ آپ نے اسد کے ساتھ اس کھیل میں حصہ کیوں لیا؟ احد کے چہرے پر ایک قلب امیز مسکراہٹ آئی۔ کچھ کھیل
दूसरों को सबक सिखाने के लिए खेले जाते हैं ज़ैनी, और कुछ खेल किसी कीमती चीज़ को बचाने के लिए भी होते हैं। तुम उसके लिए सिर्फ एक ईगो का मसला हो। मेरे लिए तुम एक जीती जागती इंसान हो। मैंने उसे अपनी हदों में रहना सिखाना है और तुम्हें इस जहन्नुम से निकालना है जिसमें उसने तुम्हें धकेला था। ज़ैनिब ने देखा कि आहत की आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। उसे महसूस हुआ शायद ये वही शख्स है जिसका वो लाशौरी तौर पर इंतजार कर रही थी, वो शख्स जो असद की गुलामी से उसे निजात दिला सके। आहत असद किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगा, ज़ैनी ने याद दिलाया। हालांकि अब उसके लहजे में वो पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। आहत उसके ऊपर से उठा, लेकिन उसका हाथ अभी भी ज़ैनी के बालों में उलझा हुआ था। आने दो उसे, आज उसे पता चलेगा कि जब एक शिकारी खुद शिकार बनता है तो उसे कैसा महसूस होता है। तुम अब मेरी पनाह में हो, और मेरी पनाह से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मेरी मर्जी से खुलता है। ज़ैनी बिस्तर पर बैठी खुद को संभालने लगी। उसके गीले बाल अब भी उसके चेहरे पर गिर रहे थे, लेकिन अब उसे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। आहत की मौजूदगी ने कमरे की फिजा को एक नई तपिश दे दी थी। वो हैरान थी कि जिस हलाला को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत समझ रही थी, क्या वही उसकी आज़ादी का सबब बनने वाला था। वो आहत की मर्दानगी, उसकी जुर्रतमंदाना दावों से मुतासिर हो रही थी। असद ने हमेशा उसे कमजोर समझा था, उसे एक चीज की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन आहत उसे एक मर्द की तरह तहफ्फुज़ फराहम कर रहा था। आपको डर नहीं लगता, ज़ैनी ने पूछा। आहत ने खिड़की की तरफ देखते जवाब दिया, जहां बारिश तेज हो चुकी थी। डर उनको लगता है जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो। मेरे पास सिर्फ मेरा फर्ज और मेरी अना है, और आज से तुम मेरा फर्ज भी हो और मेरी अना भी। कमरे के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। असद आ चुका था। ज़ैनी का दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके पास आहत की ढाल मौजूद थी। आहत ने एक गहरी नजर ज़ैनी पर डाली, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों में वही वक्कार और ताकत थी जो किसी खुफिया एजेंट का खासा होती है। खेल अब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार खिलाड़ी बदल चुके थे। आहत ने साबित कर दिया था कि वो असद के शतरंज का मोहरा नहीं, बल्कि वो खिलाड़ी है जो पूरी बसात उलटने की ताकत रखता है। ज़ैनी ने एक लंबा सांस लिया और खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार कर लिया। लाहौर की तपती दोपहर में ज़ैनी बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस का इंतजार कर रही थी। नीला सूट, सर पर दुपट्टा और हाथ में चंद किताबें पकड़ी हुई थी। वो अपनी सादगी में भी किसी शहजादी से कम ना थी। मिडिल क्लास घराने की लड़की अपनी खूबसूरती से खुद भी बेखबर थी, लेकिन सड़क से गुजरने वाला हर शख्स एक लम्हे को रुककर उसे देखने पर मजबूर हो जाता। अचानक एक काले रंग की चमकती हुई लग्जरी कार ज़ैनी के बिल्कुल सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ तो अंदर से एक वजीहा मगर मगरूर शख्स, नौजवान बाहर निकला। यह सच था, जिसके लिए दौलत और औरत को भी मसला नहीं रहे थे। एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना है आपको? असद की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। ज़ैनी ने अजनबियत से उसे देखा और नजरें झुका ली। जी मैं बस बस का इंतजार कर रही हूँ, धूप बहुत तेज है, मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। असद ने मुस्कुराते हुए पेशकश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हवस और तजस्सुस सैनी से छुपा न रहा। ज़ैनी ने दो टूक लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन मैं अजनबियों से लिफ्ट नहीं ली थी, मेरी बस आती ही होगी। असद के माथे पर बल पड़ गए। मेरा नाम असद है, मैं कोई अगवाकार नहीं हूँ, बस शराफत में मदद करना चाह रहा हूँ। आपकी शराफत आप अपने पास रखें, मुझे जरूरत नहीं है। ज़ैनी ने रुख मोड़ लिया। उसी वक्त बस आगे और तेजी से उस पर सवार हो गई, और असद वहीं खड़ा रहा। उसे पहली बार किसी ने इतनी बुरी तरह से रद्द किया था। उसकी अना को ठेस पहुंची थी, लेकिन उससे ज्यादा उस लड़की की हिम्मत और हुसन से मुतासर हो चुका था। ये लड़की, ये मुझे चाहिए, हर कीमत पर। उसने अपने मोबाइल पर किसी को फोन मिलाते हुए सर्द लहजे में कहा, और कितनी देर वही गाड़ी में बैठकर उस लड़की के बारे में सोचता रहा। असद ने अपने असर और ज़ोक़ का इस्तेमाल किया, और चंद ही दिनों में ज़ैनी के खानदान की पूरी हिस्ट्री उसके सामने थी। उसे पता चला कि ज़ैनी यतीम है और अपने लालची मामू के सहारे रह रही है। असद के लिए अब रास्ता साफ था। एक शाम वो ज़ैनी के मामू के घर पहुंचा। घर की खस्ता हाली देखकर उसके लोगों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उमड़ आई। मैं आपकी भांजी का हाथ मांगने आया, असद ने सीधा सीधा मुद्दा बयान किया। ज़ैनी के मामू ने हैरत से उसे देखा। बेटा,
तुम इतने बड़े घराने के लगते हो। हमारी ज़ैनी तो एक मिडिल क्लास लड़की है। ये रिश्ता तो बेजोड़ है। असद ने मेज़ पर एक बाहरी पैकेट रखा। उसमें 5 लाख रुपए है। ये मेरा बयाना है। निकाह के बाद आपको एक मकान भी मिल सकता है, वरना जो आप चाहें। बस मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मामू की आंखों में चमक आ गई। उसने ज़ैनी की मर्जी पूछे बगैर ही सौदा पक्का कर लिया। साहिब, ज़ैनी आपकी हुई, बस तारीख तय करें। ज़ैनी को जब पता चला तो तड़प कर रह गई, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। 19 वर्ष की उम्र में असद विला की मलका बनाकर लाएगी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये महल उसके लिए सोने का एक पिंजरा साबित होगा। शुरू के चंद माह किसी ख्वाब जैसे थे। असद ज़ैनी से जुनून की हद तक मोहब्बत करता था। उसके लिए महंगे तहाइफ लाता, उसे शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट में लेकर जाता। ज़ैनी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। असद अक्सर उसकी गीले बालों से खेलते हुए कहता, लेकिन हाई सोसाइटी की रंगीनियां असद को अपनी तरफ खींचती थी। वो अक्सर रात के घर लौटता। ज़ैनी जो सारा दिन उसका इंतजार करती, जब रात को उसे नशे में धुत देखती तो उसका दिल टूट जाता। वो भीगते और आंसू बहाने लगती। एक रात असद रात के 3 बजे घर आया। उसके कपड़ों से अल्कोहल और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू आ रही थी। असद, आप फिर इस हाल में घर आए हैं? ज़ैनी ने दुख से कहा, चुप करो। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी है। असद ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे फिक्र होती है। ज़ैनी ने उसका हाथ थामना चाहा तो असद ने उसे जोर से झटक दिया। बीवी? तुम सिर्फ एक खरीदी हुई लौंडी हो, जिसके 5 लाख रुपए दिए थे तुम्हारे मामू को। अपनी औकात में रहो, समझी? असद ने नफरत अमीज अंदाज में कहा। असद के इस जुमले ने ज़ैनी की रूह को जख्मी कर दिया। इन दोनों के दरमियान बहस बढ़ी तो असद ने पहली बार ज़ैनी पर हाथ उठाया। एक जोरदार थप्पड़ ज़ैनी के गोरे गाल पर सख्त हो गया। वो फर्श पर गिरी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। असद उसे गालियां देता रहा, उसकी शराफत और उसके खानदान का मजाक उड़ाता रहा, और ज़ैनी हैरत से अपनी आंखों में दुख भरे चेहरे के साथ उसकी गालियां सुनते रही। सुबह जब असद का नशा उतरता तो वो ज़ैनी के कदमों में बैठकर रोता। ज़ैनी, मुझे माफ कर दो, मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। नशे ने मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी थी। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ज़ैनी उसे माफ कर देती, लेकिन ये सिलसिला अब मामूल बन चुका था। मोहब्बत और मारपीट का ये चक्कर उसे अंदर से खोखला कर रहा था। वो दिन ब दिन मुरझाती जा रही थी। वो सर्द रात हस्बे मामूल बहुत ज्यादा नशे में था। उसके किसी दोस्त ने उसे ज़ैनी के किरदार के बारे में कोई बेहुदा बात कह दी थी, और नशे में असद का शक अब जुनून में बदल चुका था। वो कमरे में दाखिल हुआ और ज़ैनी को बालों से पकड़कर घसीटने लगा। बता, किससे मिलने जाती है तू? उस दिन बस स्टॉप पर भी तू किसी का इंतजार कर रही थी ना? असद की आंखें खून आलूद थी। खुदा के लिए असद, मैं कहीं नहीं जाती, मैं सिर्फ आपकी हूँ। मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं, मेरा यकीन करे। ज़ैनी चीखी, लेकिन असद पर तो जैसे शैतान सवार था। नहीं, तू मेरी नहीं हो सकती। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जिस पर मुझे शक हो। यकीनन मेरी गैर मौजूदगी में तुमने गैर मर्दों से ताल्लुकात बना रखे हैं। और फिर उसने गुस्से में आपे से बाहर होकर वो अल्फाज अदा कर दिए जो वापसी का रास्ता बंद कर देते हैं, जिन्हें सुनकर अर्श भी कांप उठता है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कमरे में सुनाटा छा गया। ज़ैनी का वजूद जैसे सुनाटे में आ गया था, साकित हो गया। असद ने गुस्से में उसे कमरे से बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह जब असद की आंख खुली तो उसे रात के बारे में कुछ याद आता। वो हंसता हुआ किचन में गया। ज़ैनी, मेरी कॉफी कहाँ है? लेकिन वहां कोई नहीं था। घर के नौकर ने उसे बताया कि ज़ैनी रात ही अपना मुख्तसर सा सामान लेकर जा चुकी है। तब असद को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपने वकील को फोन किया, मुफ्तियों से राब्ता किया, लेकिन सबका जवाब एक ही था कि तलाक हो चुकी है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, सिवाय हलाला के। असद की अना ने उसे ये मशवरा दिया कि वो ज़ैनी को किसी मामूली आदमी से निकाह करवाकर दोबारा हासिल कर ले। और फिर उसने आहद को चुना, एक ऐसा शख्स जिसे वो फल फिरोश समझकर हकीर जानता था। उसके साथ उसने एक डील कर ली थी, और इसीलिए अब ज़ैनी आहद के घर थी। ज़ैनी की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिरा। उसने सामने देखा जहां आहद खड़ा था। वो आहद
جو اب اس کا محافظ بن چکا تھا۔ اسد نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جو جال بچھایا تھا، احد نے اس جال کو ہی اسد کے خلاف ایک ہتھیار بنا لیا تھا۔ زینی کو احساس ہوا کہ اسد کی محبت ایک قید تھی، جبکہ احد کی دھمکی میں شاید اس کی آزادی چھپی تھی۔ نکاح نامہ میرے ہاتھ میں ہے اسد صاحب، اور یہ لڑکی اب میری شرعی اور قانونی بیوی ہے۔ آپ کی امانت نہیں کہ جب چاہا طلاق دے کر پھینک دیا اور جب چاہا حلالہ کے نام پر واپس لینے آ گئے۔ احد کی بھاری آواز کمرے میں تیزی سے گونجی تھی۔ وہ دروازے کے عین سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا، جبکہ زینی پیچھے بیٹھ کے پائے سے لگی سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ اس کے بال ابھی تک گیلے تھے اور اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسد جو ابھی ابھی پوری رونیت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا، احد کی جرت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری بریف کیس تھا جو شاید اس سودے کی آخری قیمت تھی، جو اس نے احد جیسے معمولی انسان کے ساتھ طے کیا تھا۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہے، گھٹیا انسان، اسد نے دان پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، وہی وحشت جس سے بے زینی برسوں سے ڈرتی آئی تھی۔ پیسے اٹھاؤ اور دفاع ہو جاؤ یہاں سے۔ زینی میری ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ حلالہ کا ڈرامہ ختم ہو چکا ہے، اب طلاق دو اور اپنا راستہ ناپو۔ احد کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ ڈرامہ آپ نے شروع کیا تھا سر صاحب، ختم میں کروں گا۔ یہ کوئی منڈی نہیں ہے جہاں آپ انسانوں کی بولی لگائے۔ زینی ایک جیتی جاگتے وجود کا نام ہے، اور اب وہ میرے نکاح میں ہے۔ میں اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، خاص طور پر آپ جیسے درندے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ تیری یہ مثال؟ اسد غصے سے دیوانہ ہو کر احد کی طرف لپکا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جانتا ہے میں کون؟ ایک منٹ میں تیری بوٹیاں کروا کر چیلوں کو کھلوا دوں گا۔ احد نے نہایت صفائی سے اسد کا ہاتھ جھٹکا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دھمکیاں ان کو دے جو آپ کی دولت سے مرعوب ہو، میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ زینی نے روتے ہوئے مداخلت کرنی چاہی۔ اسد، خدا کے لیے چلے جائے یہاں سے، یہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ احد آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اسد نے زینی کی طرف دیکھا تو پھر غصے سے چیخا، زینی، تم اس 2 ٹکے کے آدمی کی طرفداری کر رہی ہو؟ ابھی میرے ساتھ چلو، ورنہ میں تم دونوں کو برباد کر دوں گا۔ آپ اس کی فکر چھوڑیے اسد صاحب، اپنی گردن کی فکر کیجیے۔ احد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز اب دھیمی مگر حد درجہ خطرناک تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہائی سوسائٹی کے وہ نواب ہیں جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کالی کمائی، نشے کا کاروبار اور معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا کبھی سامنے نہیں آئے گا؟ اسد کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا، مگر اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ احد نے اپنی موبائل کی اسکرین اس کی طرف کی، جس پر کچھ دستاویزات کی تصاویر تھی۔ میں تمہارے خلاف تمام ثبوت جمع کر رہا ہوں، وہ تمام بے نامی جائیدادیں، وہ اسمگلنگ کے سودے جن کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، سب میرے پاس محفوظ ہے۔ بہت جلد تمہیں اسد ولا سے نکال کر پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اسد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے سامنے کھڑا شخص کوئی عام پھل فروش نہیں، بلکہ پولیس کا کوئی خاص کارندہ ہے۔ تم کون ہو؟ میں وہی ہوں جو تمہاری بربادی کا پروانہ لکھنے آیا ہے۔ احد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے لیے تمہارے جیسے بگڑے نواب کو قابو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم نے زینی کو ڈھال بنا کر مجھے اس کے قریب کیا، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب وہ میرے پاس ہے اور تم بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہو گئے۔ احد نے بوکھلاہٹ میں احد پر حملہ کرنا چاہا۔ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ احد نے مکہ مارنے کی کوشش کی، لیکن احد نے اس کا ہاتھ مڑوڑ کر اسے دیوار سے جا مارا۔ اسد درد سے کرا اٹھا، اس کی ساری فرعونیت ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو کال کر دوں، احد نے گرج کر کہا۔ اسد نے اٹھتے ہوئے زینی کی طرف ایک آخری نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ تم نے اچھا نہیں کیا زینی، اور تم احد، یاد رکھنا، اسد ولا کا مالک اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ میں تمہیں اور تمہاری اس بیوی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم دونوں کو زمین نکل جائے گی یا میری گولی کا نشانہ بنو گے، یاد رکھنا۔ دھمکیاں دیتا ہوا اسد تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز دور تک پھیلتی چلی گئی۔ کمرے میں دوبارہ وہی بوجھل خاموشی چھا گئی۔ زینی جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، اس کی شانے بری طرح ہل رہے تھے۔
आहत ने करीब आकर उसके सर पर हाथ रखना चाहा मगर फिर रुक गया। वो जानता था कि जैनी के लिए सब झेलना कितना मुश्किल है। जैनी, खामोश हो जाओ, वो अब कुछ नहीं कर सकता। आहत ने नरमी से कहा, आपने ये क्यों किया आहत? जैनी ने सिसकियों के दरमियान पूछा, वो आपको मार डालेगा, वो बहुत ताकतवर है। आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं तो पहले ही उजड़ चुकी हूँ, मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। आप मुझे उसके साथ जाने देते, कम से कम आप तो महफूज रहते। आहत उसके सामने फर्श पर बैठ गया। बर्बादी उसे कहते हैं जैनी, जो तुम असद के साथ झेल रही थी। मैंने जो कुछ कहा वो सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं था। मैं वाकई एक मिशन पर हूँ और तुम इस मिशन का एक हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में दोबारा कभी नहीं जाने दूंगा जहां से तुम निकली हो। जैनी ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। आप खुफिया एजेंट है, क्या सच है ये? आहत ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, असद पर हमारी नजर बहुत पहले से थी, बस हमारे पास ठोस सबूत की कमी थी। जब उसने हलाला के लिए किसी तीसरे बंदे की तलाश शुरू की तो मुझे मौका मिल गया। मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक केस है, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारी तकलीफ महसूस करके मेरा इरादा बदल गया। अब ये सिर्फ मेरा फर्ज नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। जैनी की परेशानी कम होने की बजाय बढ़ गई। उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी आग में कूद पड़ी है जिसका कोई किनारा ही नहीं। आहत की शख्सियत में छुपे राजों ने उसे मजीद उलझा दिया था। क्या आहत वाकई उसका हमदर्द था, या वो भी उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? जैनी ने लड़ती आवाज में पूछा। काश मैं जान पाती कि सच क्या है। आहत ने उसकी आंखों में देखा जहां बेयकीनी और खौफ का समंदर था। सच तो तुम्हें वक्त बताएगा जैनी, फिलहाल बस इतना जान लो कि इस छत के नीचे तुम महफूज हो। असद की पहुंच यहां तक नहीं हो सकेगी। बाहर बारिश अपनी तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और जैनी खिड़की की तरफ देखने लगी जहां बिजली की कड़क उसके दिल में उठने वाले सवालों की अक्कासी कर रही थी। असद की धमकियां, आहत का खुफिया मिशन और उनके बीच में फंसी हुई जैनी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। घड़ी की ठक ठक रात के सुनाटे में किसी हथौड़े की तरह जैनी के हिसाब पर बरस रहे थे। आहत के इस छोटे मगर साफ सुथरे घर में उसे मुंतकिल हुए कई दिन हो चुके थे। वो असद विला की शानो शौकत और हाई सोसाइटी की मसनूई चमक दमक से दूर एक चार दीवारी में एक अजीब सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी। मगर ये सुकून किसी भी वक्त तूफान में बदल सकता था। ये खटका उसे हर पल रहता था। जैनी का दिन घर के काम काज में गुजर जाता। कभी वो किचन में कुछ बनाती, कभी आहत के बिखरे हुए कपड़े तरतीब से रखती। आहत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वो कभी सुबह सवेरे निकल जाता और रात के वापस आता, और कभी कई कई पैर घर से गायब रहता। वो जैनी से ज्यादा बात नहीं करता था। शायद वो अपने मिशन की तफसीलात उससे छुपाना चाहता था, या शायद वो उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। असद उस मनहूस दिन के बाद से मंजर से गायब था, और यही खामोशी जैनी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो जानती थी कि तूफान आने से पहले ऐसी खामोशी छा जाती है। आज भी रात के 2 बज रहे थे और आहत अभी तक नहीं लौटा था। जैनी ने ड्राइंग रूम की खिड़की से कई बार गली में झांका, मगर वहां सिवाय आवारा कुत्तों के और सड़क की मधम लाइट्स के कुछ नहीं था। उसके दिल के वसवसे सर उठाने लगे। क्या असद ने कुछ कर दिया? क्या हाथ किसी मुसीबत में है? अचानक बाहर के दरवाजे के लॉक में चाबी घूमने की आवाज आई और जैनी ने इत्मीनान का सांस लिया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। शुक्र है आप आ गए, मैं कितनी परेशान। जैनी का जुमला अधूरा रह गया और उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकली। दरवाजे की चौखट पर आहत खड़ा था, मगर वो आहत नहीं था जो सुबह घर से निकला था। उसकी सफेद शर्ट का दायां बाजू खून से सुर्ख हो चुका था और दूसरे हाथ से अपने जख्म को दबाए हुए था ताकि खून का बहाव रोका जा सके। उसका चेहरा जर्द था और पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द की बजाय एक अजीब सी वहशत और गुस्सा था। आहत, ये क्या हुआ? जैनी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो कांपती हुई आवाज में बामुश्किल बोल पाई। आहत ने लड़खड़ाते कदमों से अंदर आते दरवाजा बंद किया और सोफे पर डे गया। पानी, उसने खुशक लबों से हल्की आवाज में कहा। जैनी भाग कर किचन में गई और पानी का ग्लास लेकर आई। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। पानी का कुछ हिस्सा कलीन पर झलक गया। आहत ने एक ही सांस में गिलास खाली किया
اور सर सोफे की पुश से टिका दिया। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। जैनी रोती हुई बोली और तेजी से बॉक्स लेने के लिए आई। जब उसने कैंची से हाथ की कमीज का बाजू काटा तो जख्म देखकर उसका दिल दहल गया। किसी तेज धार आले का वार था, गहरा और तकलीफ था। ये किसने किया? बताइए मुझे किसने किया ये सब? जैनी रोते हुए रुई के पाए से खून साफ करने लगी थी। उसके आंसू आहत के बाजू पर गिर रहे थे। आहत ने दर्द जब्त कर देखा। पता नहीं, गली के मोड़ पर अंधेरे में कोई घाट लगाए बैठा था। उसने पीछे से वार किया और जब मैं पलट कर पकड़ना चाहा तो वो मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया। बुजदिल था कमीना, सामने आने की हिम्मत ही नहीं थी। जैनी का हाथ रुक गया। उसके जबान में फौरन एक नाम गूंजा, असद। ये तरीका बुजदिली, ये धोखे से वार करना, ये असद का ही अंदाज था। ये असद है आहत, ये उसी का काम है। जैनी ने खौफजदा लहजे में कहा। उसकी आंखें फैल गई। मैं जानती हूँ उसे, वो कभी किसी को माफ नहीं करता। वो बदला ले रहा है, वो आपको मार देगा। जैनी सोफे के करीब जमीन पर बैठ गई और अपना सर घुटनों में देखकर वो रोने लगी। मैंने कहा था आपसे, मुझे उसके हवाले कर दे। मेरी वजह से आपकी जान जा रही है। देख ले, उसने हमला करवा दिया। आहत ने अपने दूसरे हाथ से जैनी का सर उठाया। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह एक अज़्म था। जैनी, मेरी तरफ देखो। आहत की आवाज में सख्ती थी। अगर ये असद का काम है तो वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वो शायद समझ रहा है कि एक फल फरोश, एक आम आदमी को डराकर वो जीत जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसने किसको नुकसान पहुंचाया। उसने अब तक लिहाज किया था, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो जमीन के किसी भी कोने में छुप जाए। आहत की बातों में तसल्ली थी, मगर जैनी का खौफ कम नहीं हो रहा था। वो असद के जुनून से वाकिफ थी। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि मेज पर रखा जैनी का मोबाइल फोन जोर जोर से बजने लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ फोन की घंटी गूंज रही थी। रात के इस पहर फोन का बजना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। जैनी ने स्क्रीन पर देखा। नंबर देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कपकपाते हाथों से फोन उठाया और अपने कान से लगाया। हेलो। उसकी आवाज बमुश्किल निकली। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी सर्द और तहसिया हंसी सुनाई दी। वही हंसी जो हमेशा जैनी को खौफजदा कर देती थी। कैसी हो मेरी जान? असद की आवाज में जहरील जहर घुला हुआ था। और तुम्हारा वो हीरो, वो खुफिया एजेंट कैसा है? उम्मीद है उसे मेरा छोटा सा तोहफा पसंद आया होगा। जैनी का खून खुश्क हो गया। मोबाइल उसके हाथ से फिसलने लगा। असद आप? हाँ मैं। असद की आवाज अब सख्त हो गई। मैंने कहा था ना जैनी कि मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकती। ये तो अभी शुरुआत है। वो जख्म जो आज उसे मिला है वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर तुमने इस मामूली इंसान को नहीं छोड़ा और वापस नहीं आई तो अगली बार वार हाथ पर नहीं गर्दन पर होगा और लाश उसके घर के बाहर लटकी मिलेगी। जैनी जारो की तार रोने लगी। खुदा के लिए सर उन्हें छोड़ दे। उनका कोई कसूर नहीं, आप मुझसे बदला लें। उन्हें क्यों मारना चाहते हैं? कसूर उसका यह है कि वो तुम्हारे और मेरे बीच में है और सिखो अपनी औकात में रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी ये सब अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि आहत ने जैनी के हाथ से फोन चिपट लिया। दर्द और गुस्से की वजह से उसकी रगें तन गई थी। उसने फोन अपने सामने रखा और दहाड़ते हुए बोला, ओए असद। आहत की आवाज में इतनी गर्ज थी कि जैनी सहम गई। सुन रहा है मुझे? बहुत शौक है तुझे चुप कर वार करने का। दूसरी तरफ असद शायद आहत की बात सुनकर चौंक गया था। चंद लम्हों को मिली खामोशी सा गई। तू समझता है कि तूने मुझे जख्मी करके बहुत बड़ा तीर मार लिया? आहत ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों से शौले निकल रहे थे। ये जो तूने बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार किया है ना, ये तेरी कमजोरी का सबूत है। अगर वाकई तू मर्द का बच्चा है तो तुझ में जरा सी भी गैरत है तो सामने आ, सामने से वार कर। आहत का सांस फूल गया लेकिन उसका लहजा नहीं टूटा। मैं तुझे बता रहा हूँ असद, आज तूने मेरे खून का एक खतरा बहाया है। मैं तेरी पूरी सल्तनत की बुनियादें हिला दूंगा। तू मुझे मामूली समझ रहा था ना, अब ये मामूली इंसान तुझे बताएगा कि जंग कैसे लड़ी जाती है। मैं चुप कर वार नहीं करूंगा। मैं तेरी आंखों में आंखें डालकर तुझे बर्बाद करूंगा। और याद रखना, जैनी मेरी इज्जत है। अगर अब तेरी या तेरे किसी गुंडे की परछाई भी उस पर पड़ी तो मैं कानून और अदालत का इंतजार नहीं करूंगा। वही मौका पर तेरा फैसला कर दूंगा।
असद दूसरी तरफ से गुस्से में चीख रहा था, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आहत ने उसकी बात काट दी। एक बिगड़ा हुआ मीरजादा जो अपनी दौलत के नशे में अंधा हो चुका है, लेकिन तेरा नशा अब मैं उतारूंगा। फोन रख और अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। आहत ने कॉल काट दी और फोन को पूरी कुवत से सोफे पर दे मारा। उसका सीना शिद्दत जज्बात से ऊपर नीचे हो रहा था। जख्म से दोबारा खून रिसने लगा था, लेकिन उसे शायद उसका एहसास नहीं था। जैनी ये सब देख और सुन रही थी। डरते डरते आहत के करीब आई। उसने देखा कि आहत की आंखों में इंतकाम की आग थी। वो शख्स जो अब तक खामोश था आज फट पड़ा था। आहत। जैनी ने आहिस्ते से उसका नाम पुकारा। आपका खून। आहत ने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और जैनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैनी के लिए वही नरमी लौट आई थी जो कुछ देर पहले गायब थी। कुछ नहीं हुआ जैनी, उसने नरमी से कहा। हालांकि उसका चेहरा दर्द से खिंच रहा था। ये खून इस बात की गवाही है कि अब जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग में तुम अकेले नहीं हो। जैनी ने फिर से रुई उठाई और इसके जख्म पर रख दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बहुत ताकतवर है आहत। ताकतवर वो नहीं, उसका वो खौफ है जो उसने तुम्हारे दिल में बिठा दिया है। आहत ने जैनी का हाथ थाम लिया। आज के बाद तुम इस खौफ को अपने दिल से निकाल दो। जब तक मैं जिंदा हूं असद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने गलत आदमी को छेड़ दिया है। अब वो देखेगा कि खुफिया एजेंट जो सब कुछ खोने पर आ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। बाहर रात का अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था, लेकिन इस छोटे से कमरे में आहत के अल्फाज ने एक नई उम्मीद का चिराग रोशन कर दिया था। जैनी को पहली बार एहसास हो कि शायद असद नाकाबिले शिकस्त नहीं है। असद का ये रूप उसके लिए नया भी था और खौफनाक भी, लेकिन यही रूप अब उसकी वाहिद ढाल था। जैनी ने पट्टी बांधते हुए दिल ही दिल में दुआ मांगी। वो नहीं जानती थी कि आने वाला कल क्या लाएगा, लेकिन वो इतना जानती थी कि अब वो असद के सामने अकेली नहीं खड़ी थी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। मेरे हाथ खोलो वरना मैं इस पूरे सिस्टम को आग लगा दूंगा। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। ये आवाज एक तरीक और सर्द कमरे में गूंज रही थी, जहां हवा में नमी और खौफ की बू रची हुई थी। असद एक आहीनी कुर्सी के साथ बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर काला मोटा कपड़ा चढ़ा हुआ था जिससे उसे नाबीना कर रखा था। उसके लहजे में वही पुरानी रौनियत और तकब्बुर था। हालांकि उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, वो एक नामालूम मकाम पर कैद था। वकील। एक भारी और बारोब आवाज कमरे के सुनाटे को चीरती हुई उबड़ी। यहाँ वकील ने सिर्फ अमाल नामे खुलते हैं असद साहब। असद ने वो आवाज पहचानने की कोशिश की। वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी, मगर इस माहौल में उसका होना नामुमकिन लग रहा था। असद के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन हो तुम? मेरे चेहरे से कपड़ा हटाओ। असद ने चीख कर कहा। अचानक एक झटके से असद के चेहरे से काला कपड़ा खींच लिया गया। कमरे की छत पर लटका वाहिद तेज बल्ब सीधा असद की आंखों में पड़ा, जिससे वो चंद लम्हों के लिए छिंदिया गया। जब उसकी बहनाई बहाल हुई और उसने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी हलक में अल्फाज जैसे जम कर रह गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखों में बेयकीनी का तूफान उमड़ आया। सामने आहत खड़ा था, लेकिन ये फल फरोश या मामूली इंसान आहत नहीं था जिसे वो जानता था। वो आहत एक स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस था जिसके कंधों पर लगे बेचिस उसके आला ओहदे की गवाही दे रहे थे। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और हाथों में एक मोटी फाइल थी। उसके पीछे दो नकाबपोश कमांडर भी खड़े थे। तुम? असद की आवाज मुश्किल निकली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या डरामा है? तुमने मुझे अगवा किया? आहत ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ फाइल मेज पर पटकी। अगवा को वो करते हैं जो कानून से डरते हैं। हम वो हैं जिससे कानून डरता नहीं, बल्कि जिनके जरिए कानून नाफिज होता है। खुश आमदीद असद साहब। ये एजेंसी का तफ्तीशी सेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है। ये नहीं हो सकता। असद ने सर झटका। तुम तो एक मामूली से आदमी थे। एक मोहरा। वही तो तुम्हारी गलती थी। आहत ने कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल सामने बैठते हुए कहा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिसने असद को उसके अंदर के खौफ को उसको खौफजदा कर दिया था। तुमने इंसान को मोहरा समझना शुरू कर दिया। तुम भूल गए कि मोहरा जब वजीर बन जाए तो बादशाह की बात यकीनी हो जाती है।
आहद ने फाइल खोली और एक एक कागज असद के सामने लहराने लगा। ये देख रहे हो, ये तुम्हारी बर्बादी के दस्तावेज है। पिछले 6 माह से मैं तुम्हारा साया बना हुआ था। तुम क्या समझे थे कि तुम तालीमी इदारों में मासूम बच्चों को नशा बेचोगे और कोई तुम्हें पूछेगा नहीं? आहद ने एक तस्वीर असद के सामने फेंकी। ये यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हारी सप्लाई किए हुए नशे की वजह से मौत के मुंह में चले गए। फिर उसने एक और कागज निकाला और ये उन लड़कियों की लिस्ट है जिन्हें तुमने मॉडलिंग और नौकरी का झांसा देकर बैरून मुल्क स्मगल किया। दुबई, थाईलैंड, मलेशिया। तुम्हारा नेटवर्क बहुत वसी था असद, लेकिन मेरी पहुंच से ज्यादा नहीं था। असद का रंग सच पड़ चुका था। वो पसीने में शराबूर था। वो समझ रहा था कि आज सिर्फ उसे डराने के लिए सब कह रहा था, लेकिन ये फाइल, ये तस्वीर, ये बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत, ये सब असली था। ये सब झूठ है। असद ने हकलाते हुए दिफा करने की कोशिश की। मेरे पास ताकतवर दोस्त है, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, मैं सबको खरीद लूंगा। मैं बाहर निकलते ही तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। आहद जोर से हंसा, ऐसी हंसी जिसमें तंज भी था और तस भी था। तुम अब भी नहीं समझे। जिन दोस्तों पर तुम्हें नाज है ना, वो तुम्हें उठाए जाने की खबर सुनते ही तुम्हें लवारिस छोड़ चुके हैं। जब एजेंसी हाथ डालती है तो तुम्हारे जैसे नासूरों को कोई नहीं अपना था। तुम्हारे तमाम अकाउंट्स सीज हो चुके हैं। तुम्हारी फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं। तुम्हारे गोदामों से टनों के हिसाब से मुंशियात बरामद हो चुकी हैं। अब तुम सिर्फ एक मुजरिम हो जिसकी सजा फांसी से कम नहीं होगी। फांसी? असद के मुंह से बेख्तियार निकला। इस लफ्ज ने उसके असाब पर हथौड़े बरसाए। मौत का खौफ पहली बार उसकी आंखों में देखा जा सकता था। हाँ, फांसी। आहद ने मेज पर झुकते उसकी आंखों में आंखें डाली। गद्दारी की सजा मौत होती है और तुमने अपनी कौम के बच्चों की रगों में जहर उतारा है। हमारी बेटियों की इज्जत का सौदा किया है। ये मुल्क से गद्दारी नहीं तो और क्या है? असद का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसकी सारी अकड़, सारी फरौनियत एक लम्हे में खत्म हो गई। वो जान गया था कि अब ताकत या धमकी काम नहीं आएगी। अब सिर्फ भीख काम आ सकती है। वो असद जो कल तक दूसरों को पैरों की जूती समझता था, अब गिड़गिड़ाने पर उतरा है। देखो आर्थ, असद की आवाज लर्ज की। तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। पैसा? जितना बोलोगे दूंगा। करोड़ों, अरबों, सब तुम्हारा। मुझे जाने दो। मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। आहत खामोशी से उसे देखता रहा जैसे कीड़े को दिख रहा हो। अच्छा, अगर पैसा ना चाहिए तो? असद ने घटिया और आखिरी कार्ड खेलने की कोशिश की। जैनी। जैनी चाहिए ना तुम्हें? रख लो उसे। मैं वादा करता हूँ कभी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखूंगा। वो तुम्हारी हुई। बस मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं जेल नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगा। आहत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसे जोरदार हाथ मेज पर मारा जिसकी गूंज से असद कांप उठा। खामोश, बिल्कुल खामोश। आहत की आवाज में शेर की सी गर्ज थी। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो असद। ये मैं जानता था, लेकिन इतने नीच हो ये अंदाजा नहीं था। तुम अब भी जैनी को एक चीज समझ रहे हो जिसे तुम सौदे में इस्तेमाल कर सको। आहत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका कद असद को बहुत बड़ा और अपना वजूद बहुत छोटा महसूस होने लगा। जैनी को तुम क्या दोगे? वो तो पहले ही मेरी है। वो मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी दी हुई भीख की जरूरत नहीं है उसे, ना मुझे। हमने उसे तुम्हारे जुल्म से आजाद करवा लिया, कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पर भी। आहत ने हकारत से असद के झुके सर को देखा। और रही बात तुम्हारी दौलत की, आहत ने फाइल बंद करते हुए कहा, तुम्हारे वो तमाम असासे जो तुमने हराम की कमाई से बनाए थे, वो अब गवर्नमेंट की मलकियत है। वो पैसा जो तुमने मासूमों की जिंदगियां बर्बाद करके कमाया था, अब उन्हीं की इलाज और बहाली पर खर्च होगा। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा सक, ना दौलत, ना ताकत, ना गरूर। असद की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पछतावे के आंसू नहीं थे, ये बेबसी के आंसू थे। वो जान चुका था कि वो हार चुका है। वो शख्स जिसे उसने हकीर समझा था, जिसे उसने रास्ते से हटाने की धमकियां दी थी, आज वही उसकी जिंदगी और मौत का मालिक बन खड़ा था। मुझे मत मारो आहत, असद रोते हुए बोला। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे जेल में डाल दो, लेकिन फांसी मत दो। आहत ने दरवाजे की तरफ रुक गया। ये फैसला मेरा नहीं, अदालत का होगा, लेकिन सबूत इतने पक्के हैं कि फैसला दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। तुम्हारे पास अब बहुत वक्त है असद। इस काल कोठरी के अंधेरे में बैठकर सोचना,
کہ جب تم دوسروں کو کچل رہے تھے تو تمہیں کیسا لگا تھا، اور آج جب تم خود کچلے گئے تو کیسا لگ رہا ہے۔ آہت دروازے تک پہنچا تو رک گیا، اسے پلٹ کر اسد کو دیکھا جو پوٹ پوٹ کر رو رہا تھا۔ اور ہاں، ایک آخری بات، آہت نے نرم لیکن سخت اور مضبوط لہجے میں کہا، زینب بہت خوش ہے، وہ ایک ایسے گھر میں ہے جہاں دیواریں کچی ہو سکتی ہیں لیکن رشتوں کی بنیادیں سچی ہیں۔ وہ اسد ولا کے قید خانے سے نکل کر آہت کے گھر کی ملکہ بن چکی ہے۔ تم اس کہانی کا وہ باپ ہو جسے ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آہت کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنے پیچھے لوہے کا بھاری دروازہ بند کر دیا۔ درام کی آواز کے ساتھ اسد کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اس طرح تنہا کمرے میں تنہا رہ گیا، اور اپنے گناہوں اور اپنے خوفناک انجام کے ساتھ۔ باہر کوریڈور میں نکل کر آہت نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو زینی، آہت اب ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے زینی کی فکر مند آواز آئی۔ آہت کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زینی، اور تم بھی اب بالکل محفوظ ہو۔ طوفان گزر چکا ہے، میں گھر آ رہا ہوں۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور تیز قدموں سے عمارت سے باہر نکل گیا۔ رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور افق پر صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ یہ کرن صرف نئے دن کی نہیں بلکہ زینی اور آہت کی نئی زندگی کی نوید بھی تھی۔ صبح کاذب کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے مدھم پڑے تھے اور مشرق سے پھوٹتی روشنی رات کی سیاہی کو نگل رہی تھی۔ آہت کے چھوٹے سے گھر کے کچن میں زینی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ چولہے پر چائے کا پانی ابل رہا تھا لیکن اس کا دھیان دروازے پر لگی گھنٹی کی طرف تھا۔ رات بھر وہ جاگی تھی، ہر آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا۔ اچانک دروازے کی لاک پر چابی گھومنے کی آواز آئی۔ زینی کا سانس جیسے رک گیا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی، دروازہ کھلا اور آہت اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی سرخی تھی، لیکن اس کے پورے وجود میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ پریشانی اور تناؤ جو کئی ہفتوں سے اس کے چہرے سے سایہ فکن تھا اب غائب ہو چکا تھا۔ آہت، زینی کی آواز میں بے یقینی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی لیکن پھر رک گئی۔ آہت نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر زینی کو دیکھا۔ اس نے گہری مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ زینی کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو زینی، طوفان گزر گیا۔ زینی کے لب لرزنے لگے۔ کیا مطلب اسد؟ آہت قریب آیا اور زینی کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا لمس گرم اور پرسکون تھا۔ اسد اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ اس وقت ایجنسی کی تحویل میں اور بہت جلد قانون کے کٹہرے میں اپنے کی سزا بھگتے گا۔ اس کا غرور، اس کی طاقت سب خاک میں مل جائے گا۔ اب تم ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آزاد ہو، مکمل طور پر آزاد ہے۔ زینی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، نجات کے آنسو تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کے اور سجدہ شکر ادا کرنے لگی۔ آہت بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور خاموشی سے اسے اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب زینی نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، لیکن اس پر ایک نور تھا۔ آہت نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے، چائے ملے گی؟ آہت نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، بہت تھک گیا ہوں، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر شاید سکون مل جائے۔ زینی فوراً اٹھی، ابھی لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کچن کے ساتھ جڑے چھوٹے سے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چائے کے کپ سے اڑتی ہوئی بھاپ ان کے درمیان حال خاموشی کو معنی خیز بنا رہی تھی۔ زینی نے کپ میز پر رکھا اور آہت کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ زینی کے دل میں ایک طوفان مچل رہا تھا۔ اسد کے جانے کی خوشی تو تھی، لیکن ایک اور ڈر اس کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آہت نے یہ سب ایک مشن کے تحت کیا۔ یہ شادی، یہ ساتھ، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، یہ شاید ایک ذمہ داری تھی۔ اب جب مشن ختم ہو چکا تھا تو اس کے رہنے کا جواز ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کا پلو مٹھی میں بھیجا اور اپنی ہمت جمع کی۔ آہت، اسے دھیمی آواز میں پکارا۔ آہت نے چائے کا کپ اور گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ زینی کی آنکھیں اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اپنی نوکری، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں چکا سکتی۔ احسان؟
कैसा ज़ैनी? आहात ने संजीदगी से कहा, ये मेरा फ़र्ज़ था। बहैसियत एक इंसान और बहैसियत वो रुक गया, शायद मुनासिब लफ्ज़ ढूँढ रहा था। ज़ैनी ने तलक मुस्कुराहट के साथ बात मुकम्मल की। बहैसियत एक एजेंट, मैं जानती हूँ आहात कि आपका मिशन था और अब ये मिशन पूरा हो चुका है। आहात ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तो ज़ैनी का दिल रो रहा था लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। वो आहात की ज़िंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आहात जैसा बहादुर और शानदार शख्स एक ऐसी लड़की का हकदार था जो मतला हो, जो हलाला के नाम पर उसके निकाह में आई हो, जिसका माजी दागदार कर दिया गया हो। तो अब आप मुझे आज़ाद कर दें। ज़ैनी ने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए। उसकी आवाज़ भरा गई थी। आपका मकसद खत्म हो गया, मैं जानती हूँ। हमारे निकाह की बुनियाद किस हालात में रखी गई। ये कोई आम शादी नहीं थी। आपने मुझ पर रहम खाकर मुझे पनाह दी, लेकिन अब मैं मजीद आपकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती। आदमी चाय का कप मेज़ पर रखा और खामोशी से ज़ैनी को देखने लगा। उसके चेहरे के तासुरात गैर वाज़ेह थे। ज़ैनी ने आंसू रोकते हुए कहना शुरू किया, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। आद, आप अपनी मर्जी से शादी करते, अपनी पसंद की लड़की लाते। मैं तो एक मुतलका औरत हूँ जिसका कोई सहारा नहीं। आपने असद को छोड़ा, उसकी वो आगे कुछ ना कह सकी। उसका गला रुंध गया। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। ज़ैनी ने खुद को संभाला। मैं कोई हॉस्टल ढूंढ लूंगी, कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। आपने मुझे असद से बचा लिया, यही मेरे लिए काफी है। अब आप अपनी नई जिंदगी शुरू करें, मुझ जैसी बोझल लड़की के बगैर। ज़ैनी ने बात खत्म की और उठने लगी। उसे डर था कि अगर वो मजीद यहाँ रुकी तो फूट कर रो देगी, आहत के कदमों में गिर जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि वो आहत उस पर तरस खाकर उसे रोके, लेकिन अभी वो मुड़ी ही थी कि आहत ने उसकी कलाई थाम ली। गिरफ्त ना सख्ती ना ढीली, बस इतनी मजबूत कि उसे जाने से रोक सके। बैठो, आहत ने नरमी से कहा। आहत प्लीज, मैंने कहा बैठो ज़ैनी। इस बार आहत की आवाज वही हाकमियत वाली थी जो उस रात थी जब उसने कहा था कि तुम मेरे निकाह में हो। ज़ैनी बेबसी से दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। आहत अपनी कुर्सी से उठा और घुटनों के बल ज़ैनी के करीब बैठ गया। यह मंजर ज़ैनी के लिए हैरान कुन था। वो शख्स जिसके सामने बड़े बड़े मुजरिम कांपते थे, वो इस वक्त उसके सामने झुका हुआ था। आहत ने ज़ैनी का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि ज़ैनी को लगा कि वो डूब जाएगी। तुमने बहुत बोल लिया ज़ैनी, अब मेरी बारी है। आहत धीमे लहजे में कहने लगा, तुमने सही कहा, ये एक मिशन था। मैं असद को पकड़ने आया था। निकाह एक जरूरत थी, एक कानूनी रास्ता था इस घर तक पहुंचने का। मैंने सोचा था कि केस खत्म होगा तो मैं तलाक दूंगा और अपने रास्ते चल दूंगा। सैनिक का दिल कटने लगा। वही हुआ जिसका उसे डर था, लेकिन असद ने बात अधूरी चुकी। मंसूबे इंसान बनाता है ज़ैनी, और फैसले आसमान पर होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मिशन के दौरान असद को कैद कराते कराते खुद किसी और कैद में मैं चला जाऊंगा। ज़ैनी ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है, मैंने तुम पर रहम खाया? आहत ने नफी में सर लिया। नहीं ज़ैनी, रहम कमजोरों पर खाया जाता है और मैंने तुमसे ज्यादा बहादुर लड़की नहीं देखी। तुमने असद जैसे दरिंदे का मुकाबला किया। तुम टूटी नहीं, तुम बिखरी नहीं। मैं तुम्हारी मासूमियत में हिस्से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से मुतासिर हुआ। आहत ने ज़ैनी के हाथ की पुष्ट पर अपना अंगूठा फेरा। तुम कहती हो मैं नई जिंदगी शुरू करूं, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। तो सुन लो ज़ैनी, एक एजेंट अपना मिशन छोड़ सकता है, अपना फर्ज छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ सकता। और तुम अब मेरा मिशन नहीं हो, मेरी जिंदगी बन चुकी हो। ज़ैनी की आंखों से आंसुओं की झरी लग गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या सुन रही है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ैनी। आहत ने बलाखिर वो अल्फाज अदा कर दिए जो उसके दिल में कई दिनों से मचल रहे थे। ये मोहब्बत कैसे हुई, कब हुई, मुझे नहीं पता। शायद तब जब तुमने उस रात मुझसे एतबार किया था, या शायद जब तब तुम मेरे जख्म देखकर रो पड़ी थी। मुझे नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि जिससे मोहब्बत की जाती है उन्हें छोड़ा नहीं जाता, उन्हें तो दुनिया से छीन लिया जाता है, जिससे मैंने तुम्हें छीन लिया। ज़ैनी ने रोते हुए कहा। लेकिन आहत, मेरा माजी, लोग बातें बनाएंगे। भाड़ में ये लोग, और भाड़ में क्या माजी। आहत ने जज्बाती होकर कहा, मेरा हाल तुम हो और मेरा मुस्तकबिल भी तुम हो। तुम्हारा माजी तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तुम्हारा इम्तिहान था, और उस गलती में तुम सुरखरू हुई।
मेरे लिए तुमसे ज्यादा पकीज़ा और कोई नहीं थी। आपने ज़ैनी के आंसू पूछे, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ज़ैनी, कभी भी नहीं। मैंने वो हलाला इसलिए नहीं किया था कि तुम्हें वापस असद को लौटा दूं, बल्कि इसलिए किया था कि तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं। वो निकाहनामा मेरे लिए कागज का टुकड़ा नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती अहद है। ज़ैनियत मजीद खुद को रोक न सकी। वो कुर्सी से नीचे सरकी और आहद के गले लग गई। सारी दुनिया का गम, सारी तकलीफें, सारे खदशात आहद के सीने से लगते ही खत्म हो गए। उसे अपना पनाह मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। आहद के महल में वो कैदी थी, लेकिन आहद उसकी इस बात से दुनिया में आजाद था। आहद ने उसे अपनी मजबूत बाहों के इसार में ले लिया, जिसे दुनिया की हर तकलीफ से उसे महफूज कर रहा हूँ। उसे कभी मत छोड़ना आहद, मैं मर जाऊंगी। ज़ैनी ने सिसकते हुए कहा, कभी नहीं। आहद ने उसके सर पर बोसा दिया। मौत ही अब हमें जुदा कर सकेगी। हम मिलकर एक नई जिंदगी बसाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। ऐसी दुनिया जहाँ कोई डर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सुकून और मोहब्बत होगी। सूरज अपनी पूरी आलताप से निकल चुका था। किरणें आपस में बिखर रही थी। परिंदों की चहचहाट ने फिजा को खुशगवार बना दिया था। ये एक नई सुबह थी, एक नई जिंदगी का आगाज था। ज़ैनी ने सर उठाकर आहद को देखा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि मोहब्बत और एतमाद था। चाय ठंडी हो गई है, ज़ैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी मुस्कुराहट में शर्मो हया की लाली थी। आहद हंस पड़ा। कोई बात नहीं, अब तो सारी जिंदगी चाय पी ली है, फिर बना लेना। दोनों एक साथ हंस पड़े। ये हंसी इस घर की दीवारों में जज्ब हो गई, जो अब हमेशा के लिए खुशियों का मस्कन बनने वाला था। वफा की वो कैद जो कभी सजा लगती थी, अब मोहब्बत की सबसे मीठी पनाहगाह बन चुकी थी।